Good morning, dear students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we were discussing about integration of the nation states, and overall, we are talking about the chapter that is challenges to build a nation. Here, we have earlier discussed about the three major approaches that was taken places by the government for making an integration of the different princely states. Today, in this video, we will move for the further steps that was taken by the government for the integration of the state. Okay? Before 15 August 1947, the ruler of the most of the states signed a document called the Instrument of Accession. Just note down this particular part. Instruments of Accession was a document that was being signed by a lot of princely states, those who want to join themselves with Indian constituency, which meant that their state agreed to become a part of the Union of India. Yani most of the state was agree with that, but even then few state was against of that. They make themselves independence and they were not ready to join Union of India. Accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest. देखिए, after few times and after some diplomatic tactful policy, some other state is also joined the Union of India, but they have taken a lot of attractions of our Indian leaders. These states are Hyderabad, Jammu and Kashmir, Manipur and Junagadh. These were the four major states. Out of these four, we'll discuss in detail one by one that what exactly was the problem and who was the king at that time and why they were not agree to join the particular union. Okay? That we are going to discuss. So firstly, we are going to take an example of a state named as Hyderabad. Hyderabad, the largest of the princely state, was surrounded entirely by the Indian territories. यानी जो हैदराबाद था वो आपका पूरा एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था एंड इट वाज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरीज. सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर नाउ, आप ये भी कंसीडर कर लीजिए कि जो हैदराबाद ओल्ड था अब वो महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का पार्ट बन चुका है. ठीक है. इट्स रूलर कैरीड द टाइटल निज़ाम. हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट जब देश आज़ाद हुआ था वहाँ का जो टाइटल हेड था या रूलर था उसको निज़ाम का टाइटल मिला था, जो कि एक बहुत ही अमीर, वर्ल्ड का अमीर व्यक्ति था. ठीक है. वॉज वेरी मच रिच पर्सन. ही एंटर्ड इनटू व्हाट वी कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स विद द इंडिया इन नवंबर 1947. देखिए, ही ज्वाइंड द इंडियन यूनियन बट after a agreement taken places with Indian government, that agreement was known as stand still agreement, and joined the Indian Union at November 1947 for a year while negotiations. ठीक है. while negotiations with the Indian government were going on. ठीक है. यानी जब इंडियन के साथ नेगोशिएशन किया इसने और ख़ुद को कुछ स्पेशल राइट्स और ड्यूटीज़ के साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्वाइन किया गया. यानी कहने का यहाँ पे ये बेसिक मीन्स है कि इसने जो ज्वाइन किया वो अपने को कुछ स्पेशल एडवांटेज लेते हुए ज्वाइन किया. ठीक है. सो दिस वॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरफेस अगेंस्ट द राजकार एंड इन सितंबर 94 इंडिया आर्मी मूव्ड टू द कंट्रोल दैट. तो एक राजकार था जो राजाकार था, उस पर इंटरफेस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने सितंबर 1948 में, और फिर इंडियन आर्मी मूव्ड टू कंट्रोल द निज़ाम फोर्स. और ऐसे करके जो इंडियन आर्मी थी उसने किस पे कंट्रोल किया? निज़ाम की फोर्स पे या उसके पर्टिकुलर फोर्स पे कंट्रोल करके उसको इंटीग्रेट कर लिया. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ मणिपुर. देखिए, मणिपुर जो था अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन. मणिपुर का जो राजा था उसको पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर था. यानी वहाँ की जो पब्लिक थी वो ये चाहती थी कि वो मणिपुर स्टेट्स विल ऑल्सो ज्वाइन विद द यूनियन ऑफ इंडिया. द महाराजा बोधा चंद्र सिंह हेल्ड द इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948. ठीक है. जून 1948 में वहाँ का जो महाराजा था उसने एक इलेक्शन कंडक्ट कराया एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च. यानी पहले वो पूरी तरीक़ों से मोनार्च था, उसके बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया.
Thus the Manipur was the first part of India to held the election based on the universal adult franchise. देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया का सबसे पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के इलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया? आंसर इज़ मणिपुर। ठीक है, यानी मणिपुर ने इस पर्टिकुलर सिस्टम को अडॉप्ट किया और उसके बाद मणिपुर मोनार्च से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया। गॉट इट? यानी नाउ द मणिपुर बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा ऑफ मणिपुर इनटू साइनिंग अ मर्ज एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। देख लीजिए, उसका जो मर्ज एग्रीमेंट था वो आपका 1947 था, 1948 था सॉरी, और ये आपका जो मर्ज एग्रीमेंट था वो आपका 1949 था। ठीक है, द गवर्नमेंट डिड सो विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। यानी गवर्नमेंट ने इसको बिना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना था उसकी परमिशन लिए बिना ही इसको अपने साथ जोड़ लिया था। ठीक है, तो दिस वाज द यू कैन से द प्रोसेस और द थिंग्स दैट वाज टेकन प्लेसेस ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट इन अ नेशंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ इंडिया टेकन द स्टेप्स टू मेक अ यूनाइटेड नेशन। थैंक यू वेरी मच।